Hello students, today we will be discuss about grouping of resistances. Grouping को बोलते हैं combination of resistances. Okay, so let us start now with grouping. Oblique combination of resistances grouping of resistances are of two types, series and parallel. So first of all we will be talking about series grouping of resistances. First is series combination of resistances. This is first resistor and this is second and this is third. Resistances of these resistors R1, R2 and R3 are connected in series with a cell oblique battery. Potential of these resistors V1, V2 and V3. Current flow in each resistor I. Okay. Therefore, according to Ohm's law, अगर हम इसकी लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? Suppose three resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in series. Are connected in series. V1, V2 and V3 are the potential of these resistors. V1, V2 and V3 are the potential of these resistors. Okay, and current flow I in each resistor, and current I flow in each resistor. Okay, therefore according to Ohm's law, according to Ohm's law, V equal to IR. This is Ohm's law. But first first resistance के लिए क्या हो जाएगा? V1 equal to IR1 because first resistor has resistance R1 and potential V1. Similarly, for second resistor V2 equal to IR2 and for third resistor V3 equal to IR3. Okay, if V is total potential, V is total potential of all resistors. If V is total potential, therefore B equal to B1 plus B2 plus B3. ओके, B1, B2, B3 के वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. I R equal to I R1
प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, ऐसे अच्छे से नोट करिए। फिर पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड स्टेटमेंट इज parallel combination of registers. Okay, ये रजिस्टर है इस तरह से, जिनके रेजिस्टेंसेस R1 और R2 है, एंड देयर इज अनदर इज थर्ड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R3. All resistances connected to this cell oblique battery. इस तरह से करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर I1, I2 and I3. Potential of each resistor is V, where V is a common potential of all resistances. Okay, so V will be written as, suppose 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel. Okay, current I1, I2 and I3 flow in these resistors. Current I1, I2 and I3 flow in these resistors, and common potential V is for each resistor, and common potential V for each resistor. Okay, therefore according to Ohm's law, according to Ohm's law, V equal to IR, and this is written as I equal to V by R. And for first register के लिए हम क्या लिखेंगे, I1 equal to V by R1, because V is common potential for each resistor. And for second resistor I2 equal to V by R2, and for third I3 equal to V by R3. Okay, if V is total current for this circuit, if I is total current, इस सर्किट के लिए अगर ये टोटल करंट I हो तो ये वाला I1, I2 और I3 ऐड होके इस I के बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1, I2 और I3 के वैल्यू पुट करें, I का भी यहाँ से, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R इक्वल टू I1 V बाई R1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, V बाई R2 प्लस I3 V बाई R3
बी कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. Okay, this is the parallel grouping for registers. Okay, इसके बाद एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए नोट. रेजिस्टेंस मैक्सिमम इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड मिनिमम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, रेजिस्टेंस इज maximum in series and minimum in parallel. ओके, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर एग्जांपल सोल्व करते हैं इसके लिए. हो गया? एग्जाम्पल नंबर 1. ये एक सर्किट है, इस तरह से. ये ओ, ये सारे रेजिस्टेंस 4 ओम के, ये भी 4 ओम 4 ओम 4 ओम और ये वाला भी 4 ओम. ए और ये बी पॉइंट है. आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड वी. व्हाट इज द equivalent resistance between A and V. ओके, देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए एक बार. दिस इज अ वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. दिस इज a valence Wheatstone ब्रिज. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका ये वाला रेजिस्टेंस होता है वो इफेक्टलेस होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा फिर? इस तरह से. ये पॉइंट ओ, ये ए और ये बी. ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस 4 ओम 4 ओम और ये वाला भी 4 ओम और ये इज ऑल्सो 4 ओम. देखिए अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे. अगर ये वाला रेजिस्टेंस इफेक्टलेस है तो सीरीज 4 और 4 8 और ये वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे. ये भी 8, ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम और ये 4 ओम तीनों पैरेलल में होंगे. तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट 8 हो जाएगा. एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 2. R इक्विवेलेंट निकल के आएगा 2 ओम. ओके, इसे नोट करिए. अगला एग्जांपल सोल्व करते हैं. एकदम ये सिंपल है. इसके बाद इन दो एग्जांपल्स के बाद एक अलग टाइप का एग्जांपल बताऊंगा जिसे आपको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा सोल्व करने में.
एग्जाम्पल नंबर 2, ये यहाँ पे एक कोई बैटरी लगी हुई है 15 वोल्ट की, इस तरह से। यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 3 ओम का, यहाँ पर भी। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरेड का, ये भी रेजिस्टेंस 3 ओम का है। 3 ओम, 3 ओम मीन्स ऑल रेजिस्टेंसेस 3 ओम के हैं, ये भी 3 ओम, ऐसे। और यहां से कुछ करंट I फ्लो होता है, मान लीजिए इसमें I1 करंट फ्लो हो जाता है, तो इस वाले सर्किट में कितना बचेगा, I माइनस I1। आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, अब कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अब इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं। ओके, अगर इसमें I माइनस I1 है तो इसमें भी I माइनस I1 होगा। अब ये जब दोनों करंट इधर आएंगे तो इसमें टोटल जाके I रह जाएगा। हो गया। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे करंट पता होना चाहिए, और उसके बाद हम पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस तो गिवन है ऑलरेडी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों में करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे, 3 और 3 6, और ये वाला 6 ओम रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, तो ये 6 और 3 क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, तो R का वैल्यू निकालेंगे 2 ओम। अब ये टोटल मिला के 2 ओम हो गया, और वो इसके साथ कैसे हो जाएगा, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5 ओम। इस वाले को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। वोल्टेज कितना दे रखा है, 15 वोल्ट, तो करंट I = क्या हो जाएगा, V/R होता है, R इक्विवेलेंट यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो 15 / 5 मीन्स 3 एम्पियर। करंट ये वाला 3 एम्पियर है, I = 3 एम्पियर। अब देखिए ये सीरीज में कनेक्ट है, ये टोटल मिला के 6 ओम हो जाएगा और ये 3 ओम, तो करंट I = V/R होता है, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल है, तो ये टोटल कितना है, 6 ओम और ये 3 ओम। जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर करंट कम होगा, और जिधर करंट ज़्यादा होगा उधर रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये क्या है, 6 ओम और ये 3 ओम, टोटल करंट कितना है, 3 एम्पियर। तो जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम होगा, यानी कि इधर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, और इधर 2 एम्पियर। इस पॉइंट को मान लेते CDF, और इसको क्या मानोगे, AB, इस तरह से। अब हमें अगर कैपेसिटर में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें इन पॉइंट्स का पोटेंशियल पता होना चाहिए, वही कैपेसिटर का हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए इसमें कितना पोटेंशियल है, 1 एम्पियर करंट है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो पोटेंशियल अक्रॉस CD = कितना हो जाएगा, I × R। I कितना है, 1 एम्पियर, R 3, तो कितना हो गया, 3 वोल्ट। अब देखिए 1 एम्पियर करंट इधर आ रहा है और 2 एम्पियर ये यहाँ पे आके टोटल ऐड हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस DF IR, I कितना है, 3, R कितना है, ये भी 3 है, तो कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। इट मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल across the capacitor equal to
BCD प्लस VDF 3 प्लस 9 मीन्स 12 वोल्ट। ओके, इसे अच्छे से नोट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मेथड की। जैसे कि मान लीजिए ये इन्फिनिटी टर्म्स हों उसके, इस तरह से डिजिट डिजिट इन्फिनिटी तक। ये मान लीजिए ये टर्म्स ए और वी है। ओके, R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर दिया गया है तो रेजिस्टेंस पूछा जाता है इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, 1/2 R1 प्लस R2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4 R3 R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में ही। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये एनसीईआरटी का है। इस तरह से ऐसे ही इन्फिनिटी टर्म्स हैं। ये ए और वी है, इनके बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के, 1 ओम 1 ओम, ये भी 1 ओम 1 ओम, इस तरह से। ओके, हमें कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट 1/2 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 दोनों ही 1 ओम है, 1 प्लस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 R3 कितना है 1 ओम इंटू R1 प्लस R2 1 प्लस 1। ओके, आप देखिए ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल आउट, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 1/2। इसके अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 जा 8। इट मीन्स आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 1/2। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। अगर चाहो तो √3 का वैल्यू पुट कर दो 1.732, तो 2.732 ओम। अगर यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया गया हो और पोटेंशियल 12 वोल्ट दिया गया हो और आपसे पूछे कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, तो क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.732 प्लस 0.5 ओम इक्वल टू 3.232 ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया। पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इक्वल टू बी बाई आर टोटल। ओके, V 12 डिवाइडेड बाई आर टोटल कितना है 3.232। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.722
एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली। इस तरह सोल्व करेंगे। ओके, इसे अच्छे से नोट करो, फिर अगला एग्जांपल सोल्व करते हैं हम। ओके, सेकेंड एग्जांपल हमारा ये है। इसमें क्या कैलकुलेट करना, आर इक्विवेलेंट और टोटल करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। तो आर इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 R1 प्लस R2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4R3 इंटू R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला बताया था अभी। तो देखिए यहाँ पे R1 तो 1 है, R2 है ही नहीं तो 0, और R3 2 ओम। तो 1/2 1 प्लस 0 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 0, R1 1 ओम, R2 0 प्लस 4 R3 कितना है 2, R1 1 प्लस R2 कितना है 0, 1/2 प्लस 1/2, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 2 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। टोटल करंट की अगर बात करें तो I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट अप्लाई करेंगे हम। V कितना है 6 वोल्ट और R कितना निकला 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। इस तरह से इसमें करंट 3 एम्पियर फ्लो होगा। अब देखिए इसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसमें टोटल करंट 3 एम्पियर फ्लो होगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस VC, इधर देखिए पोटेंशियल अक्रॉस VC इक्वल टू आई आर होता है। I कितना है 3 और R कितना है 1, ये 3 वोल्ट हो गया। टोटल वोल्टेज A और B के अक्रॉस कितना है 6, 3 वोल्ट यहाँ रह गया तो 3 वोल्ट ये वाला बचा 3 वोल्ट। इस तरह से अब अगर करंट कैलकुलेट करना हो इन 2 ओम रेजिस्टेंस में, I2 ओम मीन्स करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज कितना 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2, तो कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ओके, इस तरह सोल्व करेंगे। थैंक्स।